Yes, once again, very good morning to all of you. So, bete, yesterday we have covered up to this part. We have read about various types of resources, meaning of resource already done, various types of resources were discussed. After that, we have discussed the concept that how resources, their indiscriminate use may lead to many problems. And then we have also discussed the meaning of sustainable development. And then we were here in Brazil, that is a country in South America, in 1992, a meeting of more than 100 heads of the states that was organized. And in that meeting, the conclusions, the points which were decided, they are known as Agenda 21. Means all the heads of the states means here countries, they agreed on these points. And what was that agenda? It was यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी इनके लीडरशिप में मतलब यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ के ऊपर ऑल दीज कंट्रीज देयर हेड्स असेंबल्ड एंड दे एम्ड मीन्स दे डिसाइडेड टू वर्क अपॉन दीज पॉइंट्स. You can see in the middle of this para, you can underline also, it is an agenda. Yeah, it aims at achieving a global sustainable development. Next, it is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation. And next line also means all the countries, they decided, they agreed upon this thing that all people of different countries, they will work together. They will not work in isolation. Rather, they will join hands. They will work together for what? For improving the environment on this planet Earth, because it is the joint responsibility of all the people of all the countries. Because environmental damage is not done by one person only. It cannot be, no one, no individual can be held responsible for the degradation of the environment. Almost all the people, they contribute negatively, obviously. So then it becomes the responsibility of all the people, okay, of all the countries. So they decided they all will fight against this problem of poverty, disease, and environmental degradation. Means in other way, all will work together to improve the environment. In this manner we can also understand. So that decision is known as Agenda 21. Next, here we have to start from today's work. For today's work, resource planning, very interesting and very important from your paper's point of view also. So now, what is the meaning of this resource planning? Resource planning word has come. So with the help of this word, we can automatically come to know planning means to take care. Up now, to take care of what? To take care of the resources, because adjective resource has been written here. That means कि it is a process in which we decide to use our resources in a very judicious manner. We plan, we think, we want, and we act also accordingly to utilize our available resources on this earth, to utilize them in the best possible manner. Judicious का meaning होता है best possible manner. And what is best possible? Means without wasting the resources, without overutilizing the resources, without wasting them, without their mismanagement. We have to use all the things available to us in a very nice manner. जैसे for example, now it is this resource planning, it is not related to environment only, it is related to our basic habits. Like for example, you people have pencils, notebooks, eraser, stationery items. Many times you just throw these items, you don't take care of them. स्केल्स गिरे हैं तो गिरे हुए हैं, इरेजर गिरी है तो गिरी है, रिफिल अभी पड़ा हुआ है, बट यू थ्रो द पेन इन द डस्टबिन, यू जस्ट टीयर द पेजेस ऑफ योर नोटबुक्स. मीन्स यू आर वेस्टिंग द थिंग्स विच हैव कम टू यू, which have been provided to you by your parents. They are also resource, है ना. तो you are wasting them, you are not using them judiciously. If you are getting pocket money, you waste that money, है ना. तो that means again you are wasting that resource. So that means we should develop a habit of utilizing all the things. We should start from our home, from our daily life. Only then we can think about nature. ये नहीं होता है कि हम बैठे बैठे बहुत वी टॉक इन वेरी ग्रेट टर्म्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वी आर द ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट. नो, all these things will never be possible if we don't have the habit of saving the resources. So this thing, resource planning, means कि we have to judiciously use the resources. Why? उसका भी there is reason.
there is logic behind this reason कि why should we use carefully. So now reason is given कि भाई our India in this para, all you can underline different states यहाँ से करके ना, for example onwards you can underline also. So here in this para it has been told that India is a very vast country, very large sized country, many states are here, but surprisingly all states are not equally equipped with, equally endowed matlab blessed, all states are not equally blessed with all the resources. It, for example, in some states one resource can be there in abundance, but in other state that resource may be missing, some other resource may be found there. In third state some other resource can be found there, but it will not be there, matlab this is a natural feature या nature का एक rule है कि every place is not having the same type of resources, they are unevenly distributed. भी हैं तो हैं, they are there in the country but not equally in all parts. ठीक, like for example here it is given, जैसे example of this Jharkhand, Chhattisgarh, you can see here in between Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Now these states, they are very rich in minerals, different kinds of minerals are found there, like iron ore है, abundance of iron ore is found there, coal है या मैंगनीज है, some part of manganese है, कुछ copper है, ऐसे different minerals are found. But now what do we see, these states are rich in these minerals, but they may not be having other resource, they may not be having very fertile land, they may not be having a sufficient water resource, problem can be there. In spite of these highly equipped, highly endowed resources, these states are still backward states. इतना होने के बाद भी they are not able to make the best use of those resources. So this problem is there. Then one example of Arunachal Pradesh is given. भाई Arunachal Pradesh एक very mountainous state है. You can, you know, in the map of our country, topmost state towards the northeastern side. So Arunachal Pradesh state में there is abundance of water. Let me show you one slide also. ये देखो, very high mountains are there and this type of rivers, they are everywhere, they are found there, मतलब huge, there is abundance of water, but that water is so there, but there is lack of infrastructural facilities. वहाँ पे इतना, जैसे हमारा in northern plains it is easy to move from one place to another, there is network of roads and railways, but same type of situation is not found in Arunachal Pradesh. इतने hilly areas में इतनी roads या इतना जो होता है हमारा railway network, that is not much developed, and this water resource is also not being fully utilized. इतने dams भी नहीं है वहाँ पे, पानी तो है पर इतने डैम्स नहीं है. तो कहने का मतलब कि रिसोर्सेज हैं in one or the other state, different resources are there, but all states are not having equal amount of resources. ऐसे ही फिर यहाँ वन और एग्जाम्पल इज गिवन, राजस्थान है, तो राजस्थान में वेरी सैंडी एरिया, डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी, ह्यूज स्कोप ऑफ सोलर एनर्जी इज देयर, विंड एनर्जी इज देयर, बट वट इज मिसिंग इन राजस्थान, वाटर इज मिसिंग. तो नाउ वी नो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, इट्स अगेन अ बिग प्रॉब्लम. तो मीनिंग इज कि भाई कुछ स्टेट किसी चीज़ की वहाँ पे एबंडेंस होता है, एक्सेस में होना, बहुत ज़्यादा होना, तो दे आर हैविंग दैट इनफ रिसोर्स, बट दे मे बी मिसिंग सम अदर रिसोर्स. ऐसे ही लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ आवर ओन स्टेट, जैसे वन मोर लद्दाख एग्जांपल हैज़ बीन गिवन. नाउ लद्दाख इज नो स्टेट हैविंग टेरिटरी, अब तो ये यूनियन टेरिटरी with snow fed mountains, very high mountains are there, always covered with snow, but there is lack of water. कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं लद्दाख को, तो पीने वाला पानी वहाँ पे थोड़ा कम है. ठीक, आइस तो है, स्नो तो है, बट वो ड्रिंकिंग वाटर की वहाँ पे शॉर्टेज है. एंड बट वो स्टेट क्या है, वहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज है उनका. देर आर मेनी बौद्ध मोनेस्ट्रीज. कल्चरली दैट एरिया ऑफ अवर कंट्री इज लद्दाख एरिया, वेरी rich part of our country culture wise. And then many types of herbs are also found there, precious herbs are also found there which are used in the preparation of various ayurvedic या this herbal medicines. बट प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कनेक्टिविटी, मेनली नेटवर्क की प्रॉब्लम कह सकते हैं हम, रोड्स या रेलवेज की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं. Now here one activity is given, so here it is given कि भाई you are living in which state and that state is having excess of which mineral and resource, and this lack of which resource.
तो लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या, वी आर लिविंग इन पंजाब, है ना, तो पंजाब में विच रिसोर्स इज फाउंड इन एबंडेंस, कैन एनीवन टेल? Those who are listening carefully, can you tell in Punjab which resource is found in abundance? Nobody is speaking. Punjab में बेटे there is rich fertile land, highly fertile land is there. तो उसके ऊपर ही एग्रीकल्चर होती है, fertility of land is very high. तो पंजाब is rich in case of fertile land. But here what is missing? Other resources are missing. कौन से? Mineral resources are missing. ठीक है, अब वो मिनरल यहाँ पे इन पंजाब वी डोंट फाइंड द रिच रिजर्व्स ऑफ कोल या मैंगनीज या आयरन ओर या कॉपर या कोई और रिसोर्स, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं. मिनरल्स आर मिसिंग हियर टोटली एंड ओनली वन रिसोर्स इज मेनली फाउंड हियर, दैट इज रिच एग्रीकल्चरल लैंड. तो मतलब सेम वे भी इन अवर कंट्री देयर आर रिसोर्सेज but they are unevenly distributed. That is why we have to take care of those parts of our country where the most important things are missing. जैसे for example for Rajasthan we need to think about the availability of water. अब आप सोच के देखो, कंपेयर द स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश में एक्सेसिव वाटर इज देयर, बट इन द एक्सट्रीम वेस्ट साइड, इधर राजस्थान वाली साइड पे देयर इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर, है ना. तो इसका मतलब है कि वी हैव टू थिंक कि जो भी अवेलेबल है दैट शुड नॉट गेट वेस्टेड, रादर दैट शुड बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. जितना भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग, वैसे ही हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए. Now next is resource planning. कि what are the steps? This was so in the beginning it is given the meaning ना, तो यहाँ examples of states are given. Now we have been given the topic resource planning in India. कि what are the stages? Here you can write here one word, stages of resource planning. You can write here one word, stages of resource planning. Very important question from board's point of view. तो there are 3 stages. ठीक है, it is a complex process. Complex मतलब to plan the use of resources, it is not an easy task. It takes a lot of time, energy to think carefully, to plan carefully. So it is a complex or difficult task. ठीक है, so it involves 3 stages, means 3 steps are there. What are those? You can underline. First point, first stage, identification and inventory of resources across the regions of the country. Means identification and inventory. Means first step in the planning is to find out, पता लगाना, identify होता है to recognize, कि पता लगाना कि in which part of our country कौन सा resource मिलता है. पहले तो we should know this thing. जब तक यही नहीं पता होगा, unless and until we don't know कि in which part of the country which resource is found, then what else can we do? Nothing. पहले तो यही पता होना चाहिए. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू फाइंड आउट, टू रिकॉग्नाइज कि भी इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री व्हाट इज फाउंड, दिस इज टू बी अंडरस्टूड. एंड देन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मीनिंग होता है स्टॉक. स्टॉक मीन्स कैलकुलेट करना, क्वांटिटी का पता लगाना कि अगर कोई रिसोर्स है तो इन हाउ मच क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल देयर, ये बात का पता लगाना. ठीक, तो अब उसी के अंदर आ जाता है. नाउ दिस इज नेक्स्ट लाइन इज द इलेबोरेशन ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज कि अब इसमें होता क्या है. दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, इफ यू आर अनेबल टू लर्न द सेकेंड लाइन, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज 3 वर्ड्स, सर्वेइंग, मैपिंग, ये वर्ड्स को भी आप इतना ही याद कर सकते हो. एस्टिमेशन मीनिंग इसका ये है कि after recognizing, after coming to know that this resource is found in this part of the country in this much quantity, then we have to do the surveys. Surveys मतलब exact location का पता लगाना. जैसे हम कहते हैं for example, जैसे वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ में आयरन ओर इज देयर, तो आयरन ओर तो है वहाँ पे, बट दैट डज नॉट मीन दैट इन एवरी पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एवरी एरिया, हर एक जगह पे आयरन ओर होगा, ऐसा नहीं होता है. एरिया, रीजन होता है एक वाइडर एरिया, उसमें भी तो पिन पॉइंटेड होता है. जैसे इसको वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस वेरी सिंपल एग्जांपल. जैसे इफ आई से you students, any one of you are having for example 500 rupees. ठीक है, if I say this 500 rupees, तो अब 500 रुपीज़ का है तो आपके पास ही है, बट कहाँ पर है ये तो पता लगाना पड़ेगा. दोज 500 रुपीज़ आर इन द पॉकेट ऑफ योर शर्ट, या इन द पॉकेट ऑफ योर ट्राउज़र, या इन योर वॉलेट, और वो वॉलेट आपने पॉकेट में नहीं डाला हुआ, यू हैव केप्ट दैट वॉलेट ऑन द टेबल
आपके पास है, और यू हैव केप्ट दैट 500 रुपीज इन सम किट, और वो किट आपके स्कूल बैग के अंदर पड़ी हुई है, और घर पे एट एनी अदर प्लेस यू हैव केप्ट दैट किट वेरी केयरफुली, तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली वेयर इज दैट 500 रुपी नोट इज लाइंग। तो है, जब हम ओवरऑल बोलते हैं तो हम कहते हैं मेरे पास है, आई हैव, बट कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो उसी को हम कह देते हैं सर्वे करना कि भाई एग्जैक्टली एट विच प्लेस। रीजन तो है वो सारा छत्तीसगढ़ का, बट छत्तीसगढ़ में भी पर्टिकुलरली इन विच एरिया, इन विच प्लेस, कहाँ पर है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो सर्वे करना, पता लगाना, फिर उसके मैप बनाना। जैसे हम देखते हैं कंट्रीज के मैप होते हैं, स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट्स के, तो ऐसे ही रिसोर्सेज का आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, फिर उसका मैप वर्क करना, पता लगाना, सो दैट आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट मैप easily we can, without wasting time, we can start our work. So this type of means qualitative and quantitative, कि quantitative तो हो गया भी कितनी क्वांटिटी में रिसोर्स है, कितनी क्वांटिटी तक वो अवेलेबल है, क्विंटल्स है, टन्स है, कितना है, वो पता लगाना। सेकेंडली क्वालिटेटिव मीन्स वो रिसोर्स अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन यूज दैट रिसोर्स इन अवर डेली लाइफ, अगर वो अवेलेबल है तो किस क्वालिटी का है, इज इट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और इज इट ऑफ एन एवरेज क्वालिटी और इज इट ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, तो किस टाइप का है कोई चीज़ अवेलेबल है तो कैसी चीज़ है वो, उसकी क्वालिटी क्या है यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये सारी चीज़ों का जो पता लगाना होता है दैट कम्स इन अवर फर्स्ट स्टेज। तो सिंपली वी कैन लर्न दिस ऑल्सो, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ सो एंड सो, ठीक है। So after recognizing all these things, after finding out all these things, then what is the next stage, next step, that is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. After that we have to evolve, evolve होता है to develop, किसी चीज़ को एक्सपेंड करना, जैसे हम कहते हैं ना कि यू आर बीइंग गिवन हिंट्स ऑफ द आंसर्स, नाउ इवॉल्व द आंसर यूर सेल्फ, कि अपने आप उसको एक्सपेंड करो। तो सेम वे कि आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द क्वांटिटी एंड ऑल दैट रिकॉग्नाइजिंग, देन वी हैव टू मेक अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर फॉर्मल प्लान बनाना, एग्जैक्ट प्लान बनाना, टाइम टेबल जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे बनाना, फॉर वट, विद एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंडोड मतलब अलोंग विद, हियर वैसे एंडोड वर्ड का मतलब होता है ब्लेस्ड होना, तो ये बट यहाँ पे हमने वी हैव टू टेक द मीनिंग अलोंग विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मीन्स आफ्टर कमिंग टू नो कि वी हैव रिसोर्सेज वी कैन यूज देम, देन सेकेंड स्टेप पे वी हैव टू थिंक कि डू वी हैव द टेक्निक, do we have the appropriate machines, appropriate means suitable, do we have the suitable machines to extract that mineral। जैसे हम कहें कि आपके एरिया में क्रूड ऑयल है ज़मीन के नीचे, पता तो लग गया किसी तरीके से, बट अब उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए मशीनरी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा पता लगाने का, दैट इज़ यूजलेस, हम रिसोर्स यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता है, ओनली टू हैव द नॉलेज दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, दैट नॉलेज इज़ टू बी एडेड विद द सुटेबल टेक्निक्स ऑल्सो, टेक्निक्स मतलब मशीन्स ऑल्सो, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स इन ए गुड मैनर। तो उस सारे का अरेंजमेंट करना, स्किल, टेक्नोलॉजी, ये institutional setup means manpower is also required, single human being can't do all these things, तो कौन से लोग चाहिए, स्किल मतलब किस टाइप की स्किल्ड लेबर चाहिए। कोई किसी जगह जैसे आप देखो एट सम प्लेस सपोज वी हैव टू डू कोल माइनिंग, है ना, कोल निकालना है, तो अगर कोई आपको कहे या मुझे कहे कि जाके कोल माइनिंग कर दो, हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू, हमने थोड़ी सीखा है वो काम, हमारा काम हम तो पढ़ने लिखने से रिलेटेड काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्किल उस तरफ है। अब वो जो कोल की माइनिंग करने का काम है, वहाँ पर ओनली दैट लेबरर कैन डू द वर्क हु नोज हाउ टू टेक आउट, हाउ टू एक्सकेवेट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, हाउ टू टेक आउट कोल फ्रॉम दैट प्लेस, जिसको थोड़ी बहुत, जिसने प्रैक्टिस की हुई है, काम किया हुआ है लेबर का, वहाँ पे सीखा हुआ है, ओनली दैट पर्सन कैन डू, ऑल पीपल कैन नॉट डू। तो हेयर है कि देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि कितनी हमारे पास स्किल्ड लेबर है, कितनी मशीनरी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, किन मशीनों को अप्लाई करके वी कैन टेक आउट all these things are also equally required and important। And third you can underline, third stage is matching the resource development plans with the overall national development plans, means the planning which is being made by any institution or any state, ठीक है, that should go along with the overall development of the country। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इन पंजाब, तो पंजाब गवर्नमेंट अगर कोई प्लान बनाती है किसी भी काम से रिलेटेड, जस्ट फॉर एग्जांपल,
तो वो जो प्लान है वो हमारा जो नेशनल गोल है, नेशनल गोल कौन से हैं, पूरे कंट्री के, ठीक है, नेशनल मतलब होल ऑफ इंडिया। तो जिस बात में हमारे पूरे कंट्री का फ़ायदा होता है या उसकी डेवलपमेंट होती है, तो इन द सेम डायरेक्शन पंजाब गवर्नमेंट्स एक्शन शुड ऑल्सो गो। In the same direction, Punjab government should also make its plans. Why? Because country is nothing else but the combination of all the states. सारी स्टेट्स मिलके ही सारे काम करती हैं, तभी कंट्री बनता है। ये नहीं हो सकता कि हम एक स्टेट कुछ इधर अपना मुंह लेके बैठ जाए, दूसरी स्टेट अपना काम करे, तो फिर कंट्री का फायदा कैसे होगा? अगर कंट्री के अगेंस्ट जाके स्टेट्स काम करते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट द कंट्री, है ना। तो सेम जैसे हम कहते हैं अवर हैंड, तो ऑल द फिंगर्स दे शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन, तभी हमारा हाथ काम करेगा, है ना, वी कैन डू एनी वर्क। तो ऐसे ही ऑल स्टेट्स, ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, दे हैव टू वर्क टुगेदर एंड कीप इन माइंड कि वट एवर वी आर डूइंग, इज दैट गोइंग टू हार्म अवर कंट्री और इज दैट गोइंग टू बेनिफिट अवर कंट्री, ठीक है। जैसे आई गिव यू वेरी लाइव एग्जाम्पल, यू पीपल नो वेरी वेरी वेल दीज डेज, जैसे न्यूज़ में आ रहा है, तो अभी राइट नाउ वट इज़ देयर इन न्यूज़ कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन अवर कंट्री, है ना, न्यूज़ में कई जगह ही आ रहा है। बट इन रियलिटी देयर इज़ नो शॉर्टेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन गैस, जो मेडिकल ऑक्सीजन गैस है, वो दैट इज़ नॉट इन शॉर्टेज। प्रॉब्लम इज़ ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन। जैसे उड़ीसा में प्लांट है, तो उड़ीसा से कैसे वो गैस के टैंकर्स दिल्ली जाएंगे, कैसे वो गैस के टैंकर्स राजस्थान जाएंगे या पंजाब जाएंगे या जम्मू कश्मीर में जाएंगे, हाउ टू टेक दैट गैस फ्रॉम दैट प्लांट फैक्ट्री जहाँ भी है वहाँ से रिक्वायर्ड प्लेस पे कैसे लेके आना। तो उसके लिए ट्रेन्स आर बीइंग यूज्ड, रोडवेज आर, रोड के ऊपर ट्रक्स आर बीइंग यूज्ड टू लोड दोज टैंकर्स, या एयर लिफ्टिंग भी की जा रही है। इवन आर्मी के प्लेन्स आर ऑल्सो, एयरफोर्स के प्लेन्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड, आर्मी इज ऑल्सो हेल्पिंग। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, एवरी वन इज थिंकिंग कि हाउ टू प्रोवाइड दैट ऑक्सीजन टू द प्लेस वेयर इट इज़ रियली नीडेड बाय द पेशेंट्स, जहाँ कमी है वहाँ लेके जाएं। तो मतलब क्या हुआ कि सबके एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, ठीक। तो ये भी ध्यान में रखना होता है कि हमारे एफर्ट्स जो है, जो कुछ भी वट एवर वी आर डूइंग, दैट शुड नॉट गो इन द बेनिफिट ऑफ अवर एनिमी कंट्री, रादर इट शुड गो इन द बेनिफिट टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अवर ओन कंट्री। अपने कंट्री का फायदा हो, इस तरह से हमारे एफर्ट्स होने चाहिए सारे कामों के, ठीक है। सो दो दीज 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व, इन बातों को फॉलो करना पड़ता है, ओनली देन वी कैन डू दिस प्लानिंग, ठीक। अच्छा, उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल वी कैन टेक, जैसे सपोज यू अपीयर इन एनी टेस्ट 10th क्लास का, तो यू गेट लेस मार्क्स, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग वेरी सीरियसली कि भी नहीं, नाउ आई डोंट हैव टू बी केयरलेस, आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड and I have to score better marks. So now I should be serious and चलो let us prepare one timetable, self study का timetable बनाता हूँ मैं या बनाती हूँ, तो I will follow that. तो उसके लिए what which things are to be considered, पहले आप डिसाइड करोगे कि at what time should I start my work, in the evening या morning। फिर आप सोचोगे मेरे पास बुक्स हैं, जिन बुक्स से मैंने काम करना है, बुक्स नोटबुक्स जहाँ पे काम किया हुआ है, डू आई हैव दैट वर्क विद मी, क्या मैंने वो काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। डू आई हैव पेन और पेंसिल, डू आई हैव अ प्रॉपर प्लेस टू सिट, कोई ऐसा घर में ऐसी जगह जहाँ पीसफुली आई कैन स्टडी। आप यू पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, ओनली देन यू प्रिपेयर द टाइम टेबल एंड कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, देन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, है ना। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके कोई काम होता है। ऐसे नहीं कि उठे और काम स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो वट एवर preparatory steps are to be taken before extracting any resource and using that resource, whatever is done that comes under this resource planning, ठीक है। जो भी सोच विचार करते हैं कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है, तो उसको ही रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। देन कमिंग टू दिस साइड, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यू कैन सी in the middle, in the last half of the first para, there are many regions here, you can underline, many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the other side, there are many places which have poor resource base, but they are economically developed. Very interesting line and very simple and easy. We all can see if we compare the states of our country. Now on one side you keep Maharashtra, Gujarat, Punjab, इनको आप रखो, and on the other side Odisha, Bihar,
छत्तीसगढ़, झारखंड, इन स्टेट्स को रखो. अब नाउ व्हाट डू वी फाइंड, ये जो उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ स्टेट्स हैं, दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, दीज आर वेरी मिनरल रिच पार्ट्स. यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, स्पेशली आयरन और कोल, ये तो बहुत ही मिलता है वहाँ पे, ठीक है. बट व्हाट डू वी सी, पीपल ऑफ दीज स्टेट्स आर नॉट वेरी प्रॉस्परस, दे आर नॉट वेरी रिच, उनके पास इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, पॉवर्टी है इन स्टेट्स में. बट ऑन दी अदर, मतलब रिसोर्सेज आर देयर, मिनरल्स आर देयर, बट इवन देन दीज स्टेट्स आर पुअर स्टेट्स, ठीक है. पैसे नहीं है लोगों के पास, काम नहीं है, खाने को भी कम मिलता है, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर देयर. बट ऑन दी अदर साइड, व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन पंजाब, गुजरात, हरियाणा, these places are Punjab, Haryana, Gujarat side, these states of the country, they are not having much minerals. These are mineral less states, हम बोल सकते हैं. यहाँ पे कोई खास minerals नहीं है. गुजरात में भी, पंजाब में भी यहाँ कुछ ज़्यादा minerals नहीं पाए जाते हैं. तो बट दीज आर रिच. वो क्यों रिच हैं? क्योंकि उन्होंने, दे हैव पेड अटेंशन टू अदर वर्क्स, कुछ और कामों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है. दे हैव पेड अटेंशन टू देयर एग्रीकल्चर, या दे हैव पेड अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉटन मिल्स वहाँ पे लगा ली अपनी, कोई और इंडस्ट्री लगा ली. तो उन्होंने, दे हैव मेड एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन. तो मतलब ये है कि देयर इज कंट्रास्ट, स्टार्क कंट्रास्ट इज देयर. स्टार्क होता है बड़ी क्लैरिटी के साथ दिखने वाला जो डिफरेंस है, दैट इज विजिबल इन अवर कंट्री, कि मिनरल रिच स्टेट्स, रिसोर्स रिच स्टेट्स, they are otherwise poor in terms of money, and the other states which don't have much resources with them, otherwise they are, money wise they are rich states, comparatively they are richer states, ठीक है. तो इस तरह की situations भी they can be seen in any country, not only in India. This type of situations can be seen, observed in any country. कहीं पर भी जो बड़ा country होता है तो इस तरह की situations are there. So फिर then what is the question? तो question arises कि then our governments as well as our people, we all people, we should pay attention to this thing, कि we should try so that at least all parts of the country should come at the same level, with the help of minimum possible things. 100% तो similarity is not possible, but at least some level of equality, equitability. Equitability मतलब लोगों के पास कुछ ना कुछ इतनी इनकम हो जाए कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, सबका जो भी उनकी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं, they should get fulfilled. This type of equitable distribution of resources should take place. And for bringing that equitable distribution, we all people, including government, we all need to work hard, and we have to put in our efforts so that these problems can be eliminated to some extent. 100% not possible, but to some extent, to little, we can say, we should at least work towards this side कि कहाँ पर हमारी poverty है उसको दूर करें, कहाँ पे inequality है उसको दूर करें. तो this type of efforts are required, ठीक. फिर then in next para it has been told कि जो colonial powers थी, जैसे in India our colonial power was England, Britain था, Great Britain at that time. तो वो ऐसे ही in other parts of Asian and this African countries, many European powers, European imperial powers होते हैं those who established their empires. ज़्यादातर उसमें पोर्तुगाल था, स्पेन कंट्री था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, डेनमार्क था. ये सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, है ना. So why they were going there? Because these European powers, European countries, they were having technology, they were having research and knowledge. उनको तरीके पता थे, techniques पता थे, they were having machinery, but they were not having resources. यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है जितने रिसोर्सेज एशिया और अफ्रीका में हैं. सो मशीनरी अपने आप में कैन नॉट डू एनीथिंग. अब मशीन होने से तो कुछ नहीं होगा ना. जैसे आपको कि यू हैव ए कार, अब कार तो ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, यू हैव ए कार, बट अब कार को चलाने के लिए आपके पास पेट्रोल का अरेंजमेंट है ही नहीं, तो फिर कार कैसे चलेगी? प्रोवाइडेड कि वो पेट्रोल से चलने वाली कार है, तो अब कैसे चलाओगे? यू विल नॉट बी, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू रन दैट व्हीकल जब आपके पास उसको चलाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पेट्रोल नहीं है. तो सेम वे ये यूरोपियन पावर्स ने डेवलपमेंट तो कर लिया मशीन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, बट उन मशीनों में यूज़ करने के लिए द रिसोर्सेज विच वर रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल्स विच वर रिक्वायर्ड, दे वर नॉट हैविंग दोज रिसोर्सेज इन सफिशिएंट क्वांटिटी. So that is why they paid attention to Africa and Asian countries. वहाँ पर उनको colonies बनाया so that they can extract those raw materials, those resources,
and they can bring their raw materials to England या फ्रांस या पोर्तुगल या स्पेन, जो भी कंट्रीज थे इंपीरियल कंट्रीज, वहाँ पे लेके आए. तो कहने का मतलब है टेक्निक is insufficient in itself. On the other side, resources in itself, they are insufficient. There needs to be an ideal combination of both the things. कि रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज को निकालने वाली मशीनें भी होनी चाहिए, तो ही फ़ायदा है. मशीनें हैं तो मशीनों को कहाँ यूज़ करना है उसके लिए रिसोर्सेज भी होने चाहिए. बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. तो दैट इज़ वाई, सो रीज़न हैज़ बीन गिवन हियर, दैट इज़ वाई मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका दे गॉट colonized by various European powers. Right. Now coming to this part, very interesting. Some part of this para we have already read in economics chapter also. Conservation of resources. Conservation means saving, protect करना, to save something, to what, to save what, to save the resources. ठीक है. So why do we need to conserve the resources? So already we have done in sustainable development topic कि भाई if we keep on doing the irrational use होता है foolish use, without thinking, without carefully observing the seriousness of any problem. सोचते ही नहीं है, बिना सोचे कोई काम करते रहते हैं. तो if we do this foolish consumption, then what will happen? Our social life, our economic life, our political life, there will be different kinds of problems in the different phases and parts of our life. कंट्री के सामने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का मतलब कंट्री के सामने भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, अभी जो हमारा ये कोरोना वैक्सीन बन रहा है, तो 2 इंडियन कंपनीज आर देयर. एक है सीरम इंस्टीट्यूट है और एक है हमारा भारतीय बायोटेक करके एक कंपनी है जो बना रही है ये. एक कोविशील्ड नाम का है, एक है आई थिंक नोवा वैक्सीन करके कुछ ऐसा है. ठीक है. तो अब ये जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले हैं या दूसरे हैं, इनको अपना वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका कुछ पार्ट दैट इज देयर विद अमेरिका. ठीक है. तो अब पहले अमेरिकन गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड दैट रॉ मटेरियल टू इंडिया. तो अब आप देखो, अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं तो हमारे ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर दैट कोरोना वैक्सीन इन ह्यूज क्वांटिटी, इन लार्ज नंबर, बट इन द एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल दे वोंट बी एबल टू डू सो. है ना, बना नहीं सकते हैं. एंड वाई वाज अमेरिका रिफ्यूजिंग? बिकॉज अमेरिका वॉन्ट्स देयर कंपनी, फाइजर करके एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो उसके बनाए हुए वैक्सीन इंडिया में बेचना चाहते थे. तो इस करके वो मना कर रहे थे ताकि इंडियन पीपल, इंडियन जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं बनाएंगे तो मार्केट में शॉर्टेज होगी उनके अपने वैक्सीन की. तो जब शॉर्टेज होगी तो अमेरिकन वैक्सीन की सेल बढ़ेगी, अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा होगा. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अब वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? दीज आर, दे कम अंडर दिस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. तो पॉलिटिकली सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री दैट ऑल्सो गेट्स डैमेज्ड. हमारे सॉवरेनिटी, 9th क्लास यू हैव रेड, अपने कंट्री के बारे में उसका भला बुरा सोचना, टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. तो ऑल दीज थिंग्स दे गेट अफेक्टेड. सोशल इकोनॉमिक लाइफ का मतलब हमारा मनी वाइज हमारी इनकम वो कम होती है, या हमारा डिसीज़ के ऊपर, हमारा हेल्थ अगर ख़राब है तो हमें मेडिसिन के ऊपर ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, सेविंग्स लेस हो जाती हैं. सोसाइटी में पोल्यूशन है तो हमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो कहने का मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ दे गेट अफेक्टेड इफ़ वी यूज़ द रिसोर्सेज, मीन्स कंज्यूम द रिसोर्सेज विदाउट थिंकिंग केयरफुली. फुलिशनेस के साथ इफ वी यूज़, तो वी हैव टू फेस दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो उसके बाद फिर एक एग्जांपल ऑफ नीचे दिया हुआ है, गांधी जी का कोटेशन हैज़ बीन गिवन कि गांधी जी सेड कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी ऑन दिस अर्थ, बट देयर इज नॉट इनफ टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ इवन ए सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ. यू कैन अंडरलाइन, दिस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन ऑल्सो. दिस गांधी जी's वर्ड्स क्या है? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. है ना, किसी के ग्रीड को, लालच को तो चाहे पूरी दुनिया उसके सामने रख दो तो भी किसी का लालच पूरा नहीं होगा. और अगर केयरफुली यूज़ करना है तो कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो थोड़ी से थोड़ी चीज़ में भी अपना काम चला सकता है. अपनी नीड्स को अगर हम मिनिमम पॉसिबल रखते हैं तो हम हमेशा ही खुश रहते हैं. और अगर अपनी नीड्स को हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं बिना मतलब के, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हमारी नीड्स, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, दे नेवर कम टू एन एंड. बट अवर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड इफ़ वी केयरफुली यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज. ठीक है. तो अपनी ज़रूरतों को जितना कम रखते हैं उतना ही हम अपने जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हों, वी कैन रिमेन हैप्पी.
बट अगर हम अनलिमिटेड डिज़ायर्स और विशेस करते जाते हैं तो हमारे पास जितने मर्जी मनी हो, पैसे हो, हमारी डिज़ायर्स कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मीन्स देयर इज़ नो एंड टू ग्रीड ऑफ एनी पर्सन। तो जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है ऑन दिस अर्थ, दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द ग्रीडीनेस ऑफ द पीपल। लालची जो लोग होते हैं उनके करके ही प्रॉब्लम्स होती हैं, अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, ठीक है। सो गांधी जी वाज ऑफ द व्यू कि देयर शुड नॉट बी मास प्रोडक्शन, rather there should be, here in the last, in the end of this para it is written here, you can underline कि he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. Mass production होती है when production is done with the help of machines, very sophisticated machines at a large scale. मतलब at the same time thousands of, hundreds and thousands of commodities can be manufactured. इकट्ठी चीज़ों की प्रोडक्शन करना at very large scale, तो वो होती है मास प्रोडक्शन एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन्स। तो गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ द यूज ऑफ मशीन्स, कि भाई इतनी मशीनरी यूज ना करें कि उसके करके मैनी पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। मशीन क्या होती है, मशीन एक कोई एक आदमी के बराबर तो काम नहीं करती, एक मशीन से मेनी टाइम्स 5 लोगों के बराबर काम हो जाता है, उतनी इकट्ठी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। 10 लोगों ने मिलकर जितना काम करना है उतना एक मशीन काम कर लेती है। तो फिर उससे क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलती है, मशीनों से ही काम हो जाता है। तो गांधी जी वट वाज हिज विश कि भाई मशीनों का इतना ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए कि जिससे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए, रादर प्रोडक्शन बाय द मासिस। मासिस यहाँ पर